દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એકવાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. एक तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्णभूमि एक बाजू, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. Thank you very much for the nice song, Team Amroli College. Now moving forward, I will request our principal, a very young, dynamic and enthusiastic principal, under whose leadership college is progressing more and more. And even in this year, we are going to complete 30 years, means college has completed 3 decades. So we are very happy that the college is running under the able guidance and leadership of Principal Dr. Kishore C.N. Chawda. Now I will request our principal sir to give and welcome to participant and to this program. प्रणाम. जीजेएस आर्ट्स एंड एचपीएसआई कॉमर्स कॉलेज अमरोली एवं जीवन ज्योत ट्रस्ट परिवार की ओर से मैं परम आदरणीय और हमारे गुजरात के राज्यसभा के मेंबर और मिनिस्टर एवं श्री मनसुख भाई मांडविया जी और हमारे सभी दर्शक मित्रों,
आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन में जहां तक जो भी हुआ है, इसमें अपनी गवर्नमेंट ने आत्ममंथन और आत्मनिर्भर की योजना से बहुत सारे अपने प्रजा के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं परम आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो भी अपनी योजना है नया भारत के निर्माण के लिए, वो अपने पूरे जनता के लिए पहुंचाने के लिए अगर हमारा ये माध्यम आपको ये लगे तो हम पूरे जो भी अपनी योजनाएं हैं सभी मिनिस्टर्स जो है ये माध्यम से मैं आने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम उसके साथ जुड़ने के कृपया करें। और इस ये पूरे कार्यक्रम जुड़ने के लिए हमारे जो सेनेट मेंबर है और अकाउंट बोर्ड के मेंबर है इवन निशित पटेल जी और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है श्री आदरणीय अनिल भाई मांडविया जी और आदरणीय श्री मुलायम जी, सभी का हम अमरोली कॉलेज और जीवन ट्रस्ट परिवार और हमारी अमरोली कॉलेज परिवार की टीम से सबका हम शुक्रिया करते हैं। और फिर से है हमारे प्रिय और एवं हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय एवं श्री मनसुख भाई मांडविया जी का हम स्वागत करते हैं और आगे के लिए हमारी टीम को हम विनती करते हैं कि उनका आमंत्रण आगे शुरू कीजिए। आभार। वंदे मातरम। Thank you, Principal Chavda sir. Today we are having with us more than 3,400 registered participants, and more than that, such participants are not registered, but they are watching us on YouTube live. So, on behalf of the trust and college, I am welcoming all the participants. Today we have an eminent speaker with us, Union Minister of State for Shipping, Independent Charge, Union Minister of State for Chemical and Fertilizer, India, and member of Rajya Sabha, Honorable and respected Sri Mansukh Mandaviya sir. So I will request Dr. Chirag Sitpuria sir to introduce this eminent personality. Chirag sir. Good afternoon, one and all. I, Dr. Chirag Sitpuria, digitally welcome you, all the participants. 11th National Webinar on Post-COVID Scenario and Atmanirbhar Bharat. Mansukh Mandaviya ji is the Minister of State, Independent Charge for Ministry of Shipping and Minister of State for Chemical and Fertilizer in Government of India. Mandaviya ji was born in small village named Hanol in Palitana district of Gujarat state in a middle-class farmer's family. He holds a postgraduate degree in political science from Bhavnagar University. Mandaviya ji was very active in politics and serving people since his youth. He became a member of ABVP and soon he grabbed his position as a state executive committee member of ABVP, Gujarat unit. Seeing his intellect, skills and the zeal to work hard, he was appointed as the leader of Yuva Morcha and then he president of Palitana BJP unit. He also holds the record of being the youngest MLA in Gujarat. Working hard to serve the people and uplifting them was his only goal, and thus he organized two Padyatras of 123 kilometers and 127 kilometers for the cause of girls' education, Beti Bachao, Beti Padhao, and Vyasan Hatao. At a young age of 38, he was elected as a member of Rajya Sabha. He was also a part of various standing committees in various fields. With his hard work and intelligence, he was appointed as a secretary for the state unit BJP in 2013 and general secretary in 2014. He was appointed as Gujarat state in charge of BJP's high-tech and mega membership drive campaigning, which led to 1 crore people joining BJP in Gujarat. Mandaviya ji is well known for his intellectual analysis and true leadership, which he also exhibited in his speech on 2030 Agenda for Sustainable Development at the United Nations. He has traveled to lot many countries to explore their policy and management to help India grow at the fastest pace. On the 5th July 2016, he sworn in as a Minister of State for Road Transport and Highway, Shipping, Chemical and Fertilizer in Government of India.
Serving as a minister, he has implemented a lot of plan and thought to get the work done quickly and efficiently. He was reselected for the second term for Member of Parliament Rajya Sabha during March 2018. Mandavia ji has been a part of various delegations, twice with the President and once with Vice President, to sign MOU and develop bilateral relations with other nations. He has played a vital role in the growth of development of New Bharat with his hard work, organizational skills and intellect. सर, आपका सरल शांत स्वभाव से आपने बहुत सारे युवाओं को प्रेरित किया है। जब आप संसद भवन यूनियन मिनिस्टर रहते हुए भी साइकिल लेके जाते हो तो एक सामान्य नागरिक को गर्व महसूस होता है। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सर। Thank you, Chirag sir. Now I will request our today's eminent speaker, respected and honorable મનસુખ માંડવિયા sir. સર, આપની વાણીને સાંભળવા માટે, આપના અવાજને સાંભળવા માટે આ બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ આતુર છે. આજે આપણી સાથે 3400 થી વધુ પાર્ટિસિપન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. We have 3400 more than 3400 participants with us. વિનંતી કરીશ આજના સ્પીકર આદરણીય શ્રી મનસુખ માંડવિયા સરને. जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। आप सभी लोगों के साथ जुड़ के, सब लोग गुजराती ही हैं? आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं सब गुजराती है या मैं हिंदी? सर, हिंदी इज कंफर्टेबल। हिंदी बोलूंगा, ठीक है। डोंट वरी। मुझे आज खुशी हुई, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में न्यू जनरेशन स्टूडेंट इस विषय को समझे। वर्तमान स्थिति में गवर्नमेंट जो प्रोएक्टिव रोल में काम कर रही है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोविड जैसी वैश्विक महामारी हो, या तो देश में पुराने सालों से, आजादी समय से चल रहे सभी इश्यू को कैसे निपटाना हो, इस सभी विषय में जो रिफॉर्म हो रहा है उसके संदर्भ में आज आप लोगों ने मुझे अवसर दिया है कि न्यू जनरेशन इस विषय के संदर्भ में समझे। गवर्नमेंट की सोच क्या है, गवर्नमेंट एक्चुअली कौन सी दिशा में काम कर रही है और हमारा गोल क्या है, उसके संदर्भ में भली भांति हमें देश के न्यू जनरेशन को बताने की आवश्यकता है। और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मुझे दिया है, इसलिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों ने मुझे सब्जेक्ट दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है, मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाऊंगा। मोदी जी ने कहा देश को आत्मनिर्भर करना है, तो आत्मनिर्भरता का मतलब हमें केवल यह नहीं करना है, या तो हमें छोटी सी बात में ना निपट जाए कि हमें स्वदेशीकरण करना है। ठीक है, स्वदेशी होना ही चाहिए, लेकिन मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की है तो उसके पीछे उसके मन में बहुत क्लैरिटी है। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मतलब देश में, देश के परंपरा के अनुसार, देश की आवश्यकताओं के अनुसार, देश की जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको हम फुलफिल करें, देश में प्रोडक्शन बढ़ाए और हम दुनिया में हमारी चीजों को भेजे, या तो दुनिया के प्रति हम अपना दायित्व अदा करें और दुनिया से जो देश में इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट कम हो।
दुनिया से इनोवेशन आए, दुनिया से देश में नई बात आए और हमारे यहाँ है उसको अच्छी तरह से हम दुनिया को भेजें। और देश में आज मैं आपको बताऊं कि हमारी ट्रेड डिफिसिट है वो $5 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं और $3 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब $2 बिलियन की आज हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्जिम डिफिसिट है। ये डिफिसिट को हम कैसे फिलफुल करें? देश की प्राइमरी रिक्वायरमेंट मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी क्या करना चाहते हैं। माई सेल्फ लुकिंग फार्मा मिनिस्ट्री, मैं फार्मा मिनिस्ट्री देखता हूं, तो आत्मनिर्भर फार्मा सेक्टर में भारत को करना है उसका मतलब क्या? आत्मनिर्भर भारत को फार्मा सेक्टर में करना है उसका मतलब ये कि देश में हेल्थ एक महत्वपूर्ण विषय है और देश में हेल्थ के संदर्भ में हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। मेडिसिन के संदर्भ में हमारी आवश्यकता के अनुसार मेडिसिन का प्रोडक्शन इंडिया में होना ही चाहिए। क्या करना होगा? तो हमने एक योजना बनाई कि भाई देश में फॉर्मुलेशन बनता है और दुनिया में हम लीड करते हैं फॉर्मुलेशन सेक्टर में और दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फॉर्मुलेशन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, एपीआई चाहिए, किट स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए। उसमें से 53% ऐसे की मटेरियल्स थे, एपीआई थे 53, और 80% से ज्यादा हम इंपोर्ट करना पड़ता है। और 80% से ज्यादा हम इंपोर्ट करें और देश में उसके आधार पर फॉर्मुलेशन बने। हिंदुस्तान तो बड़ी कंट्री है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, शायद इंपोर्ट नहीं हो पाया और एक कोरोना वायरस जैसी क्राइसिस हुई या कोई ऐसी सिचुएशंस आई, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे देश की जनता को हमें हेल्थ सिक्योरिटी देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उसमें से आयुष्मान भारत निकला, उसमें से मेरी मिनिस्ट्री ने एक स्कीम ये बनाई कि देश में 53 एपीआई है जो क्रिटिकल है, जो हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उसको देश में कैसे बनाए। तो हमने एनालिसिस किया कि देश में क्यों नहीं बनता है। देश में इसलिए नहीं बनता था कि इंपोर्ट के सापेक्ष में देश में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा थी, तो हमारी इंडस्ट्रीज भी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए एपीआई इंपोर्ट कर लेती थी और फॉर्मुलेशन बना के दुनिया में बेचती थी। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या था? ये 53 एपीआई में कई ऐसा था जो फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई था। फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई में 20% एपीआई सस्ता होता था इंपोर्ट करे तो, और इंडिया में बनाना है तो 20% ज्यादा प्राइस थी, इतने महंगे बनते थे तो इंडिया में कोई बनाते ही नहीं थे। हमने तय किया कि हम उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग दे देंगे, मतलब हम एपीआई को प्रोडक्शन बेस्ड 20% इंसेंटिव दे देंगे। तो 20% इंसेंटिव देने के लिए हमने डिसाइड किया, 14,000 करोड़ रुपीस की स्कीम लॉन्च की। तो ये 14,000 करोड़ रुपीस की स्कीम लॉन्च की, उसमें हमने ऐड कर दिया एपीआई, मेडिकल डिवाइस। आज आप देखो थर्मोमीटर भी बाहर से आता है, आप टेम्परेचर जब लेते हैं आपका बॉडी का, उसके लिए जो थर्मोमीटर है वो भी मेड इन अदर कंट्री है, इंडिया में नहीं बन सकता। आप मेमोग्राफी मशीन इंपोर्ट होता है, कोई भी एक्सरे लेने के लिए जाओ तो एक्सरे मशीन इंपोर्ट होता है। क्या ये क्रिटिकल नहीं है? क्या ये देश में नहीं बनना चाहिए? ये देश में ही बनना चाहिए। उसके लिए क्यों नहीं बनता है? देश में कोई मैन पावर की, टैलेंट की, इंडस्ट्रियलिस्ट की कमी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर सकते थे और हमारे से सस्ते प्रोडक्शन कॉस्ट दुनिया में होती थी। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए इनोवेशन इंडिया में कैसे लाए, और इनोवेशन आए तब तक हम हमारा प्रोडक्शन कैसे करें, उसके लिए 5% हमने इंसेंटिव प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव देने के लिए डिसाइड किया। तो उससे देश में उसकी वायबिलिटी बनेगी, तो देश उसमें आत्मनिर्भर होगा, देश उसमें स्वनिर्भर होगा। ये कल्पना आत्मनिर्भरता की है, ये हमारी परंपरा और हमारी फिलोसॉफी भी है। आर्थिक क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में हम ऐसी नीति बनाए जो नीति
हमारे देश में, और मैं तो उसमें वो भी बोलूंगा कि देश में ताकत की कमी नहीं है भाई, ये सांस्कृतिक विरासत है हमारी, उसको उजागर करना। आप आर्थिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल और हेल्थ के संदर्भ में चाणक्य को पढ़ लीजिए। मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप चाणक्य को अच्छी तरह से पढ़िए। आपको उन्होंने जो कहा है, आप आज दुनिया के मॉडर्न कोई भी इकोनॉमिस्ट को पढ़े, कोई भी साइंटिस्ट को पढ़े, या तो वर्तमान समय में दुनिया में जिसका नाम होता है ऐसे लोगों को पढ़े, तो आप चाणक्य से बाहर नहीं जा पाएंगे। चाणक्य ने जो अर्थ क्षेत्र में जो कहा था, चाणक्य ने एक बार अच्छी बात कही थी कि कोई देश को समृद्ध होना है तो ये देश में देश के महाजनों को राज्याश्रय देना, मतलब उद्योग और व्यापार को समर्थन करना। और बाद में उन्होंने दूसरा सेंटेंस लिखा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि संपत्ति का सृजन करना एक स्किल होती है, इंडस्ट्री चलाना एक स्किल होती है। इंडस्ट्री चलाने के लिए आप में जो स्किल है, माई सेल्फ, इट कैन बी पॉसिबल दैट माई सेल्फ इज पॉलिटिशियन, बट इट्स मीनिंग इज नॉट दैट माई सेल्फ इज इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो। मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि मैं एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता हूं, अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता हूं। एक स्किल है, और जिसमें जो स्किल है उसको आप सपोर्ट करो तो ऑटोमेटिक उसकी स्किल का आउटपुट बढ़ जाएगा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक ट्रेडर्स, या तो ट्रेड को आप समर्थन करें, सपोर्ट करें, तो ट्रेडर्स अपना बिजनेस कारोबार बढ़ाएगा। चाणक्य ने तीसरा सेंटेंस लिखा कि यदि कोई राज्य अपने राज्य के गरीब और किसानों का भला चाहते हैं तो उसको महाजनों को राज्याश्रय देना। मतलब महाजन है वो सरकार की तिजोरी में टैक्स देंगे, और सरकार की तिजोरी में टैक्स देंगे तो सरकार या तो राज्य गरीब और किसान का भला कर पाएंगे। गरीब और किसान का भला करने के लिए आवश्यक है कि सरकार की तिजोरी में पैसा होना चाहिए। उसमें से दो बात निकलती है, गरीब का कल्याण के लिए मदद करना, ये परंपरागत हमारी व्यवस्था है और करना ही चाहिए। गरीब को सदियों से मदद की जाती है। दूसरा, किसान को 2100 साल पहले चाणक्य के समय में भी मदद की जाती थी। आज भी हम सरकार किसान को मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो अन्नदाता है। धरती की जनता की रिक्वायरमेंट, फूड सिक्योरिटी कौन देता है? किसान देता है। उसको समर्थन, उसको मदद करनी है तो आपको चाणक्य के रास्ते पे ही चलना होगा। इसलिए मोदी जी ने कहा, माय गवर्नमेंट इज प्रो पुअर, प्रो फार्मर्स, बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हमारी सरकार गरीब और किसान लक्ष्य है, लेकिन इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट है। इस दृष्टि से हमें सोचना है, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और इसलिए ये चला गया नहीं। इसलिए यहां से थोड़ा ये डिस्टर्ब हुआ था। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। यस यस। तो इसलिए हमारी जो विभावना है, मोदी जी ने इस बात को अच्छी तरह से पकड़ा है। ये विभावना की ओर, और ये विभावनाओं को चरितार्थ करने के लिए या तो वही रास्ते से मैं आत्मनिर्भरता की ओर जाना है। देखो, मैं आपको एक उदाहरण तौर पर बताऊं। आप किसी के घर पे जाइए, गांव में जाइए, शहर में जाइए, उसमें लिखा होता है शुभ लाभ। शुभ लाभ का मतलब क्या है? शुभ लाभ का मतलब यह है कि हम हर कंट्री को, हर स्थिति को अपना अपना मॉडल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूरोप, अमेरिका, सारी कंट्री को देखें तो वो कैपिटलिज्म मॉडल पर चलता है, मतलब लाभ की ही बात होती है। कई कंट्री में ऐसी बात आई कि लॉकडाउन करो, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने अपने देश के लोगों का जान को जोखिम में डाली। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है। ये जान है तो जहान है, ये आत्मनिर्भरता का मॉडल है। हमारे घर में
जो गेट पर लिखा है, एंट्री में लिखा है शुभ लाभ, मतलब शुभ भावना से भी काम करना है, लाभकारी भावना से भी काम करना है। व्हाट इज शुभ भावना? शुभ भावना ये है कि हमें आवश्यकता के अनुसार चैरिटी भी करना है, आवश्यकता के अनुसार गरीबों को मदद भी करना है, आवश्यकता के अनुसार हमें जरूरियातमंद लोगों को सहयोग भी करना है। यहां हमारी कल्पना यह है कि गरीब में से गरीब लोगों को भी प्राथमिक सुविधा मिले और उसको जीने का इतना ही अधिकार है जितना अधिकार एक अमीर लोगों के लिए है। और इसलिए ही हमारा कल्चर ही ऐसा कहता है, हमारी संस्कृति ही ऐसा कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व का कल्याण, यही हमारी भावना है। वसुधैव कुटुंबकम की हम जब बात करते हैं तो विषय ये आता है वसुधैव कुटुंबकम। हमने क्या किया? मैंने जैसे आपको फार्मा सेक्टर में मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं। अनिल नेक्स्ट। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी आई, और जब ये कोरोना वायरस की महामारी आई तो दुनिया में उसको मेडिकल इलाज के लिए 3 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट खड़ी हुई। एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, दूसरी एजिथ्रोमाइसिन, तीसरी पैरासीटामोल। ये 3 मेडिसिन देश में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी और हिंदुस्तान ये 3 मेडिसिन में एक बड़े प्लेयर थे। तो सारी दुनिया ने मोदी जी को कॉल किया कि मोदी जी हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन दीजिए। मोदी जी ने क्या कहा? दुनिया को ऐसा नहीं बोल दिया कि हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी भावना है। तो ये भावना ने हमें क्या सिखाया? ये भावना ने हमें सिखाया कि ठीक है, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उपयोग करें, बाकी दुनिया को देना चाहिए। दुनिया भी हमारा एक परिवार है। तो मोदी जी ने मानवता के आधार पर डिसीजन लिया और हमको मेरी मिनिस्ट्री को कहा कि देखो भाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हमारा उत्पादन कितना है, आप हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करो, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करके प्रिडिक्शन लिया और डिसाइड किया 1 महीने में। फॉर एग्जाम्पल, मार्च महीने में यहाँ लॉकडाउन हुआ, अप्रैल महीने में देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, पैरासीटामोल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और वर्ष से वर्ष सिचुएशंस हो जाए तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो कि भाई चलो मई के एंड में 10 करोड़ टैबलेट की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो मोदी जी ने हमें कहा कि 10 करोड़ टैबलेट आप एक साइड में निकाल दो और बाकी देश में प्रोडक्शन कितना है उसको आकलन करो। हमने आकलन किया और मुझे आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आप जब दुनिया के कोई देश में जाएंगे ना, आफ्टर कोविड के बाद, शायद यूरोपियन कंट्रीज में जाए या तो विश्व की कोई भी कंट्री में जाए, और वहां जब आप जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं इंडियन हूं, तो दुनिया आपके साथ सम्मान के साथ देखेगी। ओ, आप इंडियन हैं, गुड, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। क्यों थैंक यू बोलेंगे वो आपको? इसलिए थैंक यू बोलेंगे, वो कहेंगे कि जब कोरोना वायरस की क्राइसिस थी और हमारा देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं थी, ऐसी स्थिति में भारत ने हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया था। दोस्तों, दुनिया की 113 कंट्री में 2 महीने में हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल पहुंचाया। हम आर्थिक आधार पर कब महासत्ता हो पाएंगे या तो हम कब डेवलप्ड हो पाएंगे, आई डोंट नो, बट मैं इतना अवश्य बोल सकता हूं कि मानवता के आधार पर, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, आत्मनिर्भरता के आधार पर हमने दुनिया में ये स्थान स्थापित किया है कि हम विपरीत स्थिति में दुनिया के साथ है। और आत्मनिर्भरता का मॉडल हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी समस्या है उसको निपटाना है तो कभी आप नेचुरल रिसोर्स का इतना यूज मत कीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज या तो कुदरत के सामने मत थाइए। देखो, यही स्थिति में यही हमारी होम्योपैथी, ईरान में यूनानी
हमारा आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन दिया था यही हमारा योग, हमने उसको ही अडॉप्ट किया ना, और उससे अच्छा रिजल्ट भी मिला ना। इतना ही नहीं, देश में जो हमारा ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं थी, फॉर एग्जाम्पल अपने घर के, हम किसी पर कितना कितना आत्मनिर्भर थे। हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता था और हम सफाई करते थे ना, हमारा घर की सफाई। कई लोगों ने घर पे भी इस्त्री किया कि नहीं किया, अपना बाल जात अपने स्वयं को काटा कि नहीं काटा। कई चीज ऐसी है जो लॉकडाउन में हमें उसका एहसास हुआ, और कई ऐसी भी चीज है ये हमें एहसास करवाया कि एक सफाई कर्मी नहीं होता तो आपकी हालत क्या होती। एक सफाई कर्मी नहीं होता है तो कितनी गंदगी हो जाती है। आपको पता लगा, एक हेयर कटिंग सलून में से हेयर कटिंग करने वाला नहीं होता तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है। सबका सम्मान करना ये हमारी संस्कृति का संदेश है, और यही हम देश में एक गरीब व्यक्ति के प्रति भी सम्मान के साथ कैसे देखे, उसकी भी जरूरत कैसे पूरी करे। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन करने की आवश्यकता हुई, मैं कोई कंट्री का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन कई कंट्री में, जिस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, वहां की स्थिति क्या हो गई थी, आपका कोई परिचित है तो उसको पूछिए, वहां है या तो वहां से कोई आया हो तो उसको पूछिए। लेकिन देश में मोदी जी ने तुरंत ही गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया। गरीब कल्याण पैकेज घोषित करके देश के गरीब लोगों को तीन टाइम खाना मिल जाए, भोजन की असुविधा न रहे, उसके लिए सुनिश्चितता तय की। धीरे धीरे 2 महीने के बाद एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज के रूप में हमारा बजट है दोस्तों 28 से 30 लाख करोड़, और हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहली घटना हुई है। उसमें से अराउंड 21 लाख करोड़ का हमें पैकेज दिया गया। ये हमारा नियरेस्ट बजट इक्विवेलेंट है, और ये पैकेज जो दिया गया है उसको आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से मोदी जी ने 5 पिलर दिया, और 5 पिलर के आधार पर मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का विजन रखा। एक, आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बनाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। हमारी सिस्टम कई ऐसी है, इस सिस्टम में बहुत कुछ बदल करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि दुनिया से एफडीआई आए, लेकिन एफडीआई लाने के लिए हमें जो आज के दिन में जो सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल कई हमें परमिट लेनी पड़ती है, कई कागज करना पड़ता है। उसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम हम कैसे फॉलो करें। डायरेक्ट देश के इंडस्ट्रियलिस्ट है, देश के ट्रेडर्स है, देश के गरीब लोग है, देश के किसान है, उसको ज्यादा कागज में नहीं उजलना पड़े, और मिनिमम रिक्वायरमेंट से सिंगल विंडो सिस्टम से हम कैसे हमारी परमिशन या तो परमिट या तो हमारी सिस्टम से हमें जो करना है वो हम कर सके। हमारी डेमोग्राफी अलग टाइप की है। हमारी डेमोग्राफी में गरीब भी है, किसान भी है, मध्यम वर्ग भी है, एमएसएमई भी है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। ये सबको ध्यान में रखते हुए सबके हाथ में काम भी होना चाहिए। आत्मनिर्भर स्वावलंबन से भी जुड़ा हुआ विषय है, काम भी मिले, और ये सबके लिए डिमांड क्रिएट करनी होगी। एक बार जो डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो डिमांड क्रिएट कहां से होगी? डिमांड क्रिएट करने के लिए व्यक्ति के हैंड में, व्यक्ति के जेब में पैसा आना चाहिए। पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, या तो इंडस्ट्रीज डिमांड बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी सर्वाइव हो जाएगी। हमारी आत्मनिर्भरता का हमारा जो आधार स्तंभ है
वो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड है। और उसके आगे आत्मनिर्भर भारत में उसकी आधारशिला जब हमने ये पैकेज बनाया तो पैकेज में 4 बिंदु डाले। 4L पर मोदी जी ने अपना विजन दिया, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लो। दोस्तों, मोदी जी की एक विशेषता रही है, उन्होंने कोई विषय को ऐसे नहीं छोड़ दिया। उन्होंने जो विषय और जो विजन दिया वो कार्य योजना के साथ दिया। हम कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे? हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज तो दे दिया, लेकिन ये पैकेज कैसे देंगे? इकोनॉमी का एक नेचर होता है दोस्तों, और जब कोई देश में डिमांड क्रिएट करनी है तो डिमांड क्रिएट करने के लिए 2 टाइप की मनी दी जाती है और उसको जनता में फ्लोट की जाती है। एक हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी मतलब डायरेक्ट आप व्यक्ति के जेब में पैसा डाल दो और वो फिर से वापस गवर्नमेंट के पास आने की कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन एक दूसरा और प्रॉपर रूट मोदी जी ने लिया है। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो सपोर्टिव सिस्टम के माध्यम से, लोन के माध्यम से, जन कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, गरीबों को रोजगारी के माध्यम से ये पैसा दिया है। और ये पैसा इस रूट से आने से वो रूट में घूम के एक बार इकोनॉमी को सर्वाइव करके देश में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देंगे और देश में इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी। उसमें एक मोदी जी ने कहा 4L पर हमें पैकेज का अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। एक लैंड, एक लेबर, एक लिक्विडिटी और एक लो। लैंड मतलब खेत, किसान, किसान को उसको फायदा मिलना चाहिए, तो किसान को फायदा मिले इसलिए एमएसपी में बढ़ाया, एमएसपी बढ़ाया, एमएसपी से प्रोक्योरमेंट बढ़ाया, किसान के अकाउंट में पैसा डाला, किसान को सरलता से फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाए उसके लिए व्यवस्था की। ये सब व्यवस्था करने से किसान के पास आज जो पड़ा हुआ है माल, या तो जो उन्होंने पैदा किया है, सब चीज पड़ी हुई है, वो तुरंत ही बिक जाएगी तो उसके हैंड में पैसा आ जाएगा। और ये पैसा आ जाने से पीएम किसान योजना के माध्यम से उसके अकाउंट में पैसा आया, तो ये पैसा आने से उसकी खरीद शक्ति बढ़ेगी। और मोदी जी ने कहा कि शायद किसान ने केसीसी लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है और नहीं भर पाएंगे ऐसी स्थिति में क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है, तो 3 महीने पहले और 3 महीने बाद उसको एक्सेस दे दिया। और देश में ऐसे 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, जो फिशरमैन है, जो एनिमल हस्बेंड्री करता है, ये सबको सपोर्ट किया और नया 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपीस और देने के लिए कहा। 3 करोड़ किसान जिसको 4.22 लाख करोड़ की जो लोन दी हुई थी उसको एक्सटेंड कर दिया और अभी नहीं देंगे तो चलेंगे। ऐसे कई इनिशिएटिव फार्मर्स के लिए लिया गया, उसका फायदा किसान को होगा और उसके माध्यम से किसान की जेब में पैसा आएगा नेक्स्ट, और ये पैसे के माध्यम से हमारी इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और दोस्तों दूसरा, नेक्स्ट, श्रमिक, ये महत्वपूर्ण विषय है। देश में श्रमिक के लिए पिछले 2 महीने में 3,500 करोड़ से ज्यादा उसके लिए राशन के लिए खर्च किया गया। 8 करोड़ श्रमिक को उसको फायदा हुआ और मुद्रा शिशु लोन के माध्यम से 12 महीने में 2% उसको जो उन्होंने लोन लिया था उसमें रिबेट्स दिया। दोस्तों, गरीब और एकदम नीचे तबके के लोग
जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर के लिए ये बहुत बड़ी बात है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आपके मन में क्या आएगा कि मोदी जी ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर है उसको 10,000 तक के हम लोन देंगे। ये बहुत, उसके लिए एक रेहड़ी खरीदना, एक स्ट्रीट में जाके बैठना और उसकी जरूरियात के लिए मार्केट से या तो फ्रूट वेजिटेबल एपीएमसी से खरीद के वहां बैठने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में 5,000 करोड़ रुपीस देश के ऐसे तबके के लोगों को देना है जिस तबके के लोग फिर से अपना कारोबार अच्छी तरह से शुरू कर सकें। और ये शुरू करने के लिए 5,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा 10,000 की लोन के रूप में। आप कहेंगे कि साहब आप बोलते हैं लेकिन पैसा नहीं देंगी लोन, बैंक पैसा नहीं देगी। बैंक क्यों पैसा नहीं देती है? क्योंकि बैंक को भरोसा नहीं होता कि पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये विषय में मोदी जी ने कहा है कि उसकी गारंटेड गवर्नमेंट है। शायद छोटे व्यक्ति कभी पैसा लेट दे पाया, नहीं टाइम पे हफ्ता भर पाया, तो आपको चिंता मत करना, उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन आपको देना है, इसलिए रेहड़ी वाले हो, स्ट्रीट वेंडर हो, उसको भी उसका लाभ मिलेगा। वैसे ही मनरेगा योजना की स्कीम चलती है, लेकिन देश में मिनिमम 8 से 10 करोड़ लेबर कोरोना वायरस की क्राइसिस के बाद इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अपने अपने वतन में पहुंचे हुए हैं। वहां पहुंचने के बाद भी उसकी रोजगारी शुरू रहनी चाहिए। जैसा मैंने कहा ना कि 4 पिलर है, उसमें एक लेबर भी है, श्रमिक भी है। ए श्रमिक के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। और इसलिए ज्यादा मनरेगा में जो 50-60 हजार करोड़ का आवंटन बजट में होता है वो तो था ही, उसके अलावा 40,000 करोड़ रुपीस बढ़ा दिया। और मैं मेरे गांव गया था, मैंने देखा नंबर ऑफ हजारों की संख्या में गांव में आज मनरेगा योजना के माध्यम से श्रमिक लोगों को रोजगारी मिल रही है। और श्रमिक लोग अपना जीवन को चलाने में वहां श्रम कर रहा है, वहां मेहनत कर रहा है और उसको वहां मजदूरी मिल रही है। इस दृष्टि से देश के श्रमिकों के लिए काम किया गया है दोस्तों। वैसे ही एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। देश में 25 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट है और देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगारी देने वाला यह सेक्टर है। उसमें 3 लाख करोड़ रुपीस उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की गारंटी के साथ लोन देने की योजना बनाई है। उसका फायदा क्या होगा? उसका सीधा फायदा यह होगा कि एमएसएमई को भी स्टार्ट होना है और उसको लोन मिल जाए। लोन मिलने से उसका चक्र तुरंत ही फरना शुरू हो जाएगा। उसके पास इंडस्ट्रीज को मोबिलाइज करने के लिए फंड मिल जाएगा और ये भी उसको तुरंत ही रिएम्बर्स नहीं करना है, तुरंत ही नहीं भरना है, लॉन्ग टर्म के लिए है। उससे इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिल जाएगा। दूसरा, कई ऐसी एमएसएमई है जो एमएसएमई स्ट्रेस है, ऐसी स्ट्रेस एमएसएमई को भी बूस्टअप देने के लिए जो एनपीए हो चुकी है ऐसी एमएसएमई 20,000 करोड़ रुपीस अलग से दिया जाएगा। उससे जो बंद हो गई है, कोई कारण होंगे, कई रीजन होंगे, कई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, तो उसको भी मदद मिल जाएगी। तो ये एमएसएमई बूस्टअप हो जाएगी और एमएसएमई बूस्टअप हो जाने से देश का अर्थतंत्र फिर से गति में आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको भरोसा के साथ बोल सकता हूँ, दुनिया की जो भी स्थिति हो, मैं इकोनॉमिक्स की स्टडी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इंडिया को लीड करते हुए गया हूँ, दुनिया की इकोनॉमी समझने की कोशिश करता हूँ। उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि ये आत्मनिर्भर भारत के बेस के आधार पर ये हमारा 20.97
लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये पैकेज के माध्यम से शॉर्ट टर्म में दुनिया कब आएगी कब नहीं आएगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट हुई है, नॉट ओनली फॉर इंडिया। तो सारी दुनिया की इकोनॉमी पर जो नेगेटिव इफेक्ट हुई है उसमें से दुनिया जब निकले तब, लेकिन इंडिया निकल जाएगा, ऐसा मुझे पक्का लगता है। और ये आज, क्योंकि हम केवल आज आपके साथ बात करते हैं, लेकिन मेरे पास ए टाइप का पोर्टफोलियो है, तो सभी इंडस्ट्रीज के साथ मेरा कंसल्टेशन रहता है, उसके साथ भी वेबिनार से हम बातचीत करते रहते हैं। हम उसको पूछते हैं कि ये स्कीम है, ये पैकेज है, उसका लाभ आप कैसे लेंगे, उसका क्या फायदा होगा, उससे आपकी इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी या तो बूस्टअप होगी। तो ये लोग की जो रिप्लाई आती है उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि एमएसएमई और हमारे इंडस्ट्री सेक्टर ये तुरंत ही पुटअप हो जाएगा और उसका फायदा हमें मिलेगा। और एक आत्मनिर्भर भारत में एक मोदी जी ने दूसरा कहा कि देश में, अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो आप में से भी कई एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कई स्टूडेंट होंगे, कल आप एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, कल आप ऑफिसर्स बनेंगे, कल आप आकलन करेंगे। मोदी जी ने कहा कि 200 करोड़ तक का कोई टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। उसका मतलब यह है कि देश की रिक्वायरमेंट है, ये देश में ही फुलफिल होनी चाहिए। और ये फुलफिल करने के लिए कई ऐसी चीज है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन स्थिति के अनुसार हम उसका प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन 200 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट की कोई प्रोक्योरमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं करना है। तो उसकी इफेक्ट क्या आएगी, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मुझे एक पोर्ट पर क्रेन चाहिए और एक क्रेन की कीमत होती है 20 से 25 करोड़ की, और ये इंडिया में नहीं बनता है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, 200 करोड़ रुपीस तक तो इंडिया से ही लेना है। तो बाहर की कंपनी टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में आ जाएगी और इंडिया की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करेगी या आके इंडिया में मेक इन इंडिया करेगी। तो आके इंडिया में मेक इन इंडिया करेगी, उससे क्या फायदा होगा, शायद वो फॉरेन कंपनी है लेकिन इंडिया में एफडीआई लेके आई और उन्होंने वो आकलन करेंगे कि इंडिया में कितना पोर्ट है, तो कहेंगे कि 63 पोर्ट है, उसमें से कितनी क्रेन चाहिए, क्योंकि भाई सालाना उसको 15-20 क्रेन तो चाहिए ही चाहिए। तो सालाना 15-20 क्रेन चाहिए तो उसका टेंडर तो बार बार आएंगे, तो चलो मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। तो इंडिया के साथ का जॉइंट वेंचर करेंगे तो इंडियन कंपनीज को फायदा होगा और कई कंपनी डायरेक्ट एफडीआई लाके यहाँ मेक इन इंडिया करेगी, तो वहां से टेक्नोलॉजी भी आएगी और हमारे यहाँ रोजगारी का सर्जन भी होगा। इस दृष्टि से बहुत विजन के साथ हमने ये प्लान किया है और इस दृष्टि से हम देश में आत्मनिर्भरता की ओर कैसे आगे बढ़े ये हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अनिल। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ये इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और उसमें ये पैकेज में क्या कहा गया कि हम 70,000 करोड़ की प्रोत्साहित योजना के माध्यम से हाउसिंग सेक्टर को बूस्टअप करेंगे। देखो 70,000 करोड़ रुपीस बैंक के माध्यम से हाउसिंग सेक्टर में आएगा, उससे क्या फायदा होगा, उससे यह फायदा होगा कि हाउसिंग सेक्टर में 70,000 करोड़ रुपीस आएंगे तो 70,000 करोड़ रुपीस पीपीपी मोड से करेंगे तो सामने से भी लगेगा, तो 2-3 लाख करोड़ रुपीस लग जाएंगे। और ये 2-3 लाख करोड़ रुपीस लग जाएंगे तो जब हाउसिंग स्टार्ट होता है तो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, हाउसिंग जब बनता है सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबकी डिमांड क्रिएट होगी, सबकी डिमांड क्रिएट होगी, तो ये पैसा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये पैसा अल्टीमेटली लास्ट पर्सन तक जाएगा
और इसलिए हाउसिंग सेक्टर में 70,000 करोड़ रुपीस की प्रोत्साहक योजना डिक्लेयर किया। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय उसमें ऐड किया गया है कि पीपीपी मोड से हम आवास बनाएंगे, और पीपीपी में किसको साथ में लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूं, तो गवर्नमेंट मुझे कहेगी कि आप हमारे साथ बैंक के साथ मिलके आपके यहां जो लेबर काम कर रहे हैं उसके लिए लेबर कॉलोनी बनाओ। और लेबर कॉलोनी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, सरकार के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार हाइजीन वाली होनी चाहिए। आज हजारों लाखों लेबर कोई जगह पे काम करते हैं और अच्छी जगह रहने के लिए नहीं उसको मिलती है, झोपड़ी में रहना पड़ता है, और ये झोपड़ी में रहने से उसके हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट होती है। उसको अच्छा मकान मिलेगा, और ये उसको मकान मिलेगा, इंडस्ट्रीज को अपना काम हो जाएगा, अपने लेबर को अच्छा मकान दे पाएंगे, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। और पीपीपी मोड से गवर्नमेंट, बैंक और प्राइवेट प्लेयर, इंडस्ट्रीज वो साथ में आ जाए, इस दृष्टि से हमने ये डिसीजन लिया है। और कई सेक्टर हमने ओपन किए हैं, 500 जो आज कोयले की खदान है। देश में कोयले का रिजर्व ही इतना है और हम कोयला इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं, और केवल गवर्नमेंट सेक्टर पर हम डिपेंड करते थे जी नहीं। आइए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आके कोयले का खदान कर सकता है, और कोयले के खदान के माध्यम से हम कई लोगों को रोजगारी दे सकते हैं, आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। हमें इंपोर्ट पर डिपेंड कम करना पड़ता है। रिसोर्सेज हमारे पास है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस दृष्टि से हम धीरे धीरे सेक्टर को खोल रहे हैं, रोजगारी बढ़ा रहे हैं, देश में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, देश की जरूरियात के अनुसार देश में रिक्वायरमेंट फिलफुल हो ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं, और उसमें 20 लाख करोड़ रुपीस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दृष्टि से आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अनिल। और जो कई हमने एक्शन लिया है, जैसा हमने देश में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनीज है, और जो प्रोडक्शन करने वाली और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि प्रोडक्शन करते थे और प्रोडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी उससे पेपर कर लेती थी, लेकिन उसमें कई टाइप का लॉस आता था और कई कंपनी उसमें घाटे में चल रही थी। उसको भी 90,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट दिया है, इसलिए कोई 20 कंपनी बंद ना हो, किसी को इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता देश के कोई कोने में दिक्कत ना हो। और उसके लिए एक नई टैरिफ नीति भी हम तय कर रहे हैं, टैरिफ पॉलिसी भी तय कर रहे हैं, जिसका लाभ अगले दिनों में होना है। कुल मिला के नेक्स्ट अनिल, कुल मिला के हम ये स्थिति में जा रहे हैं। ये विषय थोड़ा टेक्निकल है, आरबीआई वाला जो एक स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये करना है, लेकिन उसके लिए कई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, कई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो इसलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में जब बैंक के पास ज्यादा पैसा होता है तो बैंक अपने पास नहीं रख सकती है और रिजर्व बैंक में जमा कराती है और उसका इंटरेस्ट उसको मिलता है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट जब आप कम कर देते हैं तो उसको मार्केट में ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो तब ही मार्केट में जाएंगे क्योंकि रिजर्व बैंक उसको कम पैसा देगी और मार्केट से उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। वो कोई प्राइवेट लोगों को, कंपनीज को वो लोन के रूप में पैसा देंगे तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा इंटरेस्ट उसको मिले और या तो ये इंटरेस्ट के लिए वो नीचे जाए और रिजर्व बैंक में अपना पैसा ना रखे, इसलिए रिवर्स रेपो रेट भी कम किया है। और रेपो रेट के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी आइडेंटिफाई की है। जो लोग इकोनॉमिक्स में रुचि रखने वाले लोग हैं उसमें उसको पता लगेगा। उसके लिए 8 लाख करोड़ की फैसिलिटी क्रिएट की है और ये 8 लाख करोड़ रुपीस जो कैश रिजर्व रेशियो है
उसको कम किया है, इसलिए कैश रिजर्व रेशियो कम करने से ऑटोमेटिक लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक नीचे पैसा जाएगा। दोस्तों, उससे आप कल्पना कर सकते हैं अगले दिनों में, आज तक आपको ऐसा लगता था कि बैंक थोड़ी रिजिड है, बैंक पैसा नहीं देती है, आपको बहुत सरलता से पैसा उपलब्ध होगा, लेकिन सिस्टम के साथ फिर से रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिर से बैंक में रिटर्न आना आवश्यक होता है। जो ये पैसा हेलीकॉप्टर मनी के रूप में या तो डायरेक्ट आपके पास आ जाए तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है। ये नेगेटिव इफेक्ट भी ना हो, देश में इन्फ्लेशन भी ना बढ़े, और देश की इकोनॉमी ज्यादा सुदृढ़ बने, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और हमें आगे बढ़ना है, उस दिशा में हम सुनिश्चितता से आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट तो कुल मिला के जो लास्ट में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आत्मनिर्भरता ये देश के लिए बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता के आधार पर ही हम फिर से एक बार देश को हमारी फिलोसॉफी के आधार पर, ये बात गलत नहीं थी, ये बात सही थी कि हमारे देश में दूध घी की नदी बहती थी, मतलब देश समृद्ध था, देश सेल्फ सस्टेन था, देश वसुदैव कुटुंबकम की भावना के अनुसार दुनिया के साथ ताल मिलाता था, देश चाणक्य की फिलोसॉफी के अनुसार अपना व्यवहार करता था, देश गीता के उपदेश के अनुसार जितना हमारा है उसके पर ही हमारा अधिकार है। सृष्टि का दोहन नहीं करना, लेकिन सृष्टि के साथ तालमेल मिलाना। हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना, लेकिन प्रकृति के साथ कदम मिला के चलना। उसमें से ही हमारा आयुर्वेद निकला है, उसमें से ही हमारा लाइफ लाइन बनी हुई है। यही लाइफ लाइन सही लाइफ लाइन है, ऐसा कोरोना क्राइसिस ने हमें दिखा दिया है। और ये ही जीवन पद्धति विश्व में आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, कोरोना वायरस की महामारी हो, विश्व में कई समस्या है, उसका समाधान यही जीवन पद्धति दे सकती है। और ये सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये जीवन पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए आत्म भारत का विजन मोदी जी ने हमारे सामने रखा है, और ये विजन के माध्यम से देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा, और एक हमारा कल्पना का भारत माता परम वैभव के स्थान पर विराजमान हो, ये सुनिश्चित करेंगे। यही आज के दिन के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर फॉर एनलाइटिंग स्पीच। ये पूरे सेशन में आत्मनिर्भर भारत के करीब करीब सभी मुद्दों को हमने डिस्कशन कर लिया, और आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट मित्रों को इससे बहुत सारी जानकारी भी मिल गई होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चनिंग सेशन, आई विल रिक्वेस्ट Professor Chirag Sitpuria sir to go forward. Dr. Chirag Sitpuria sir. सर हेलो। यस हाँ सर, आपका ही एक जो मिनिस्ट्री है शिपिंग मिनिस्ट्री, जिसमें शिपिंग ब्रेकिंग का एक बिजनेस है, जो इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, और पूरे वर्ल्ड के 30% से शायद 30% के करीब जो वर्ल्ड के जो शिप ब्रेक होते हैं, वो आप जहाँ से आते हो भावनगर, अलंग और अलग अलग जगह पे ब्रेकिंग होता है। तो सर वहाँ पे एक कंसर्न रहता है, जो भी वर्कर्स काम करते हैं उसके सेफ्टी के और एनवायरमेंट कंसर्न, तो उसके लिए सर मिनिस्ट्री कैसे काम करती है? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुनिया में हर साल 1000 शिप ब्रेकिंग के लिए जाते हैं,
उसमें से 300 से 400 शिप ब्रेकिंग के लिए इंडिया में आता है। और उसके लिए हमारे पास 3 एडवांटेज है। इंडिया में स्किल लेबर पावर है। इंडिया में नेचुरल जो अलंग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा करंट वाला सी है, और सबसे ज्यादा करंट होने से दुनिया के कितने भी बड़े शिप क्यों ना हो, वो डायरेक्ट हाई टाइड होती है तब बीच हो जाता है। ये 2 सुविधा हमारे फेवर में होने से आज शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुई है। आपने कहा है कि ये लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज है और उसकी सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ सिक्योरिटी और उसके रहने के लिए अच्छी सुविधा, हाइजेनिक रहने की व्यवस्था, ये सब होने बहुत आवश्यक है। और उसके लिए एक दुनिया में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक हांगकांग कन्वेंशन के माध्यम से हैजार्डस वेस्ट मटेरियल रिमूवल सिस्टम कैसी होनी चाहिए, शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम करने वाले, रिसाइकलिंग यार्ड में काम करने वाले लेबर की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक विस्तार से गाइडलाइन दिया था। और मेरी मिनिस्ट्री ने, मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में शिप रिसाइकलिंग बिल को पारित करके हैजार्डस वेस्ट रिमूवल सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुनिश्चित की, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेल्थ पैरामीटर वहां काम करने वाले को, उसकी ब्रेकिंग के समय में काम करते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको ग्लोव्स पहनना चाहिए, उसको जो जो इक्विपमेंट की आवश्यकता हो। कई ऐसा ब्रेकिंग है और कई ऐसी ब्रेकिंग के लिए जब जाते हैं तो वहां एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके लिए एक नॉर्म्स के अनुसार उसको ये सब चीजों को उपयोग करना होता है। ये सब हमने कानूनी रूप में सुनिश्चितता खड़ी की है। और हमारे अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के सभी शिप ब्रेकर्स उसको फॉलो भी करता है, और दुनिया ने, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। और अच्छी तरह से शिप ब्रेकिंग इंडिया में बढ़ रहा है। शिप ब्रेकिंग बढ़ने से बहुत सी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज बनती है। मेरा तो आग्रह है जो मुझे सुन रहे हैं, कभी अवसर मिले तो एक बार ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, उसको देखने जैसा है। उसमें से फर्नीचर निकलता है, उसमें से इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट निकलता है, उसमें से स्टील निकलता है, कई चीज निकलती है। और 15-20 किलोमीटर लंबा क्षेत्र में ये सबका सेल लगा हुआ होता है। और आप एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपका क्वेश्चंस भी अच्छा है। और इंडिया उसके लिए बहुत अच्छी तरह से एग्रेसिव रोल में हमने काम करके दुनिया में इंडिया का नाम बनाया है। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक और क्वेश्चन था कि WHO ने हाइड्रोक्लोरोक्विन बैन कर दिया और बहुत सारे देशों को उसको यूज करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो ये क्या एक प्रोपोगेंडा ही है, या मतलब जो इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है हाइड्रोक्लोरोक्विन का, जिससे इंडिया का जो अभी कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो सब, तो WHO ने ऐसा बैन करने का क्या मतलब? WHO ने उसको बैन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो सूची बनाई कि उसके ट्रीटमेंट के लिए ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करके उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया। लेकिन ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है? ये बेसिक मेडिसिन है इम्यूनिटी बढ़ाने की। फॉर एग्जाम्पल, ये आज से नहीं, जैसा पैरासीटामोल बेसिक मेडिसिन है, ऐसी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको जब अंग्रेज लोग इंडिया में आते थे पहले, तो अंग्रेज लोग जब इंडिया में आते थे तो उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिलाते थे। क्यों? मलेरिया के सामने, उस वक्त मलेरिया का डिसीज इंडिया में बहुत होता था, तो उसके सामने उसको प्रोटेक्शन मिले। वैसे ही कोरोना वायरस के लिए आज भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइन डिक्लेयर किया है कि जिसको जो कर्मी हेल्थ वर्कर कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसको प्रिकॉशन के लिए उसको कैसे ट्रीटमेंट लेना है, ये प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट है। और भारत सरकार ने डिसाइड किया, दुनिया में
प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं लेना ऐसा नहीं है, सब लोग ले ही रहे हैं। और जो नई रेमडेसिविर ट्रीटमेंट के लिए आई है, लेकिन वो आफ्टर कोविड के बाद की है। जब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है तब इंट्रावेनस उसको दी जाती है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो प्रिकॉशन के लिए है, जिससे आप की इम्यूनिटी बढ़े और आप कोरोना वायरस के संक्रमण का सामना कर सके। इस दृष्टि से उसका उपयोग है। और उसका सारा आज के दिन में भी दुनिया की डिमांड इतनी ही है, सारी दुनिया में इंडिया आज के दिन में बेच ही रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया स्वयं ने ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ही उपयोग किया है। अमेरिका खुद भी आज भी प्रिकॉशन के लिए स्वयं ट्रंप ने कहा था कि मैं भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहा हूं, तो ये प्रिकॉशन के लिए है। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की, उसमें बहुत सारी चीजें बैंकिंग के थ्रू लोन लेने की बात है। बहुत सारे लोन ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेब्ट की वो 20%, किसी में 60% एमएसएमई लोन, और उसमें 100% अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का नहीं है। तो उस कंडीशन में जो बैंक्स है, बैंक्स लोगों को लोन तो दे देंगे और वापिस से रीपेमेंट नहीं होगा। जैसे एक कंसर्न था एक मॉनिटोरियम का, पहले 3 महीने किए फिर 6 महीने किए, तो उसमें बहुत सारे एनबीएफसी और बैंकिंग के ऊपर एक खतरा है। जो अभी तक बैंक अच्छी खासी चल रही थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा आ चुका है कि शायद आने वाले टाइम में एनपीए बढ़ जाएगा। तो उस कंसर्न को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? उसमें 2 बात है भाई। आज का समय ये भरोसा का समय है। सरकार ने एक भावना के साथ एमएसएमई पर भरोसा किया है। हम अपेक्षा करते हैं और हिंदुस्तान का अनुभव भी ये ही रहा है, सब लोग नहीं भरने वाले नहीं होते हैं। और इस स्थिति में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं कि हम देश की जनता पर भरोसा ना करें। हमने देश की जनता पर भरोसा किया है, देश की इंडस्ट्रीज पर भरोसा किया है, और ये देश की इंडस्ट्रीज पर भरोसा करते हुए बैंक को एश्योरेंस दिया है कि आप दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ऐसा ही जैसा प्रोएक्टिव रूप में गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने के लिए भरोसा जताया है, वही विश्वास इंडस्ट्रीज फुलफिल करे। वही रास्ता है हमारे पास, वही रास्ते पे हम चले। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक और क्वेश्चन है, शिपिंग इंडस्ट्री रिलेटेड ही है। जो रोरो फेरी जो चल रही थी, अभी भावनगर में काफ़ी टाइम हमें सुनने में आता है कि 6 महीने चालू रहता है, 6 महीने बंद रहता है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते। जो मतलब हर समय चलना चाहिए वो नहीं चलता। तो उसका फ्यूचर क्या है? ये उसके फ्यूचर के संदर्भ में मैं बताऊं, उसके पहले मैं बताऊंगा कि ये वसुधैव कुटुंबकम की मैं बात कर रहा था ना, और कुदरत के सामने लड़ने की बात कर रहा था। कुदरत के सामने आप ज्यादा नहीं लड़ सकते हो, उसके अनुकूल होना है। तो आज के दिन में जो गोगा दहेज रोरो फेरी सर्विस चल रही थी, वहां एक नर्मदा नदी ने अपना जो प्रवाह था वो बदल दिया, और ये प्रवाह पहले था। उसके अलावा जब हमारी जेटी थी उस साइड डाइवर्ट हो गया लास्ट फ्लड में, तो उससे नुकसान ये हो गया कि एकदम सिल्टिंग वहां होना शुरू हो गया। तो ये फेरी सर्विस को बंद करनी पड़ी। और कंटिन्यूस हम ड्रेजिंग करें तो कितना करें, तो हम एक ऐसा रास्ते पे, ऐसा मोड पे जा रहे हैं जो कुदरत को अनुकूल होते हुए हम रूट को सुनिश्चित करके परमानेंट वहां फेरी सर्विस चलाए। ये हमारा कमिटमेंट है और ये हम चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक क्वेश्चन था कि आप मतलब हमने आपको हर हमेशा बाइसिकल चलाते देखा है। संसद भवन जब भी आप जाते हो बाइसिकल चलाते हो, और आपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि मतलब ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई मतलब दिखावा नहीं है, ये आपका पैशन है। और हमारा सौभाग्य है कि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। yes. तो उसके रिलेटेड आप यही बात है। कुल मिला के मैं स्पष्ट मानता हूँ, मैं एक संदेश देना चाहता था। नंबर ऑफ टाइम मैंने कहा है कि इट्स नॉट फैशन टू मी, इट्स पैशन टू मी। व्हाई?
इसलिए कि आवश्यकता हो तो आप जिसका इस्तेमाल करना है करें। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप साइकिल लेके दिल्ली से गुजरात जाओ, मैं भी प्लेन में जाता हूं, लेकिन आपको नजदीक जाना है तो क्यों फ्यूल जलाए? फ्यूल जलता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, पोल्यूशन होता है। फ्यूल जलता है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारा हुडियामन चला जाता है। फ्यूल जलता है और हम गाड़ी लेके गए, हमारा शारीरिक श्रम कम हो जाता है और हमारी हेल्थ बिगड़ती है। आप मेरी फिटनेस देखते हो ना, मेरी फिटनेस का वही सीक्रेट है। मैं सुबह शाम 1 घंटे कंपलसरी साइकिलिंग कर लेता हूं, तो अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे निवास से पार्लियामेंट नजदीक है, तो मैं क्यों ना साइकिल लेके जाऊं। साइकिल लेके जाने से, और दूसरा, मेरे मन में जो गरीब साइकिल चलाता है ना, साइकिल स्टेटस का सिंबल नहीं होना चाहिए। एक गरीब साइकिल चलाता है, वो देश का काम कर रहा है। इस दृष्टि से जनता को देखना चाहिए। ये अपनी स्वास्थ्य का भी काम कर रहा है, ये पोल्यूशन भी कम कर रहा है, ये कार्बन भी कम उत्सर्जित कर रहा है, फ्यूल बचाता है तो देश का हुडियामन भी बचता है। तो उससे गरीब व्यक्ति का कमिटमेंट नेशन के प्रति इतना है, क्या हम सब लोग अपने जीवन में ऐसा नहीं कर सकते हैं? मैं साइकिल लेके घूमता हूं तो नॉट ओनली फॉर यू बट सारे देश में, मैं कोई भी शहर में जाता हूं तो इस शहर में मुझे लोग एक भारत सरकार के मंत्री के रूप में पहचानते हैं, उससे ज्यादा साइकिल वाले मंत्री आए ऐसे पहचानते हैं। मैं जब एमपी था तब भी साइकिल लेके जाता था, तो जब पार्लियामेंट में तो मनसुख मांडविया को ढूंढते थे तो कौन मनसुख मांडविया? साइकिल वाला। तो ऐसा करके साइकिल तो प्रमोट हो रही है और कई साइकिल क्लब बनी हुई है। कई लोगों ने मुझे साइक्लोथॉन के लिए, फ्लैग ऑफ के लिए बुलाया है, मैं जाता भी हूँ। उससे फायदा यह होता है कि लोग में हिपोक्रेसी ऐसे खत्म हो गए। बड़े लोग साइकिल नहीं चला सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप जाओ डेनमार्क में, आप डेनमार्क में 48 लाख पॉपुलेशन है और 48 लाख साइकिल है। अब स्विट्जरलैंड जाओ, आप नेदरलैंड चले जाओ, तो वहां 45 लाख पॉपुलेशन और 40 लाख साइकिल है। सब लोग साइकिल लेके चलते हैं, निकलते हैं। ये एक गोल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज साइकिल दिन के अवसर पर मेरा सभी जो लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं उसको आग्रह है कि साइकिल एक जीवन का पार्ट बनना चाहिए। नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, तो क्यों ना हम साइकिल का उपयोग करके अपनी हेल्थ को बचाए। कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आज बोलते हैं कि साइकिलिंग इट्स बेस्ट एक्सरसाइज। हम जिम में जाके साइकिल चलाए तो क्यों हम अपने काम के स्थल पर जाके एक्सरसाइज ना कर ले? ये रवैया अपनाना चाहिए। सर, इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। आप साइकिल पे ही जाते हो तो आपको दिल्ली में डर नहीं लगता? डर लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक बार पैशन बन जाता है तो डर बड़ छूट जाता है। और ये ऐसा समय है, हर लोग आज के दिन में, मैं तो मानता हूँ कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोई कई बात मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि उसका उपयोग कई करते हैं कई नहीं करते हैं, लेकिन मुझे तो डर नहीं लगता है और मैं तो जाता हूँ और 8 साल से जाता हूँ। यस सर। ओके सर। सर, केमिकल और फर्टिलाइजर रिलेटेड एक क्वेश्चन है। केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर एक्सपोर्ट सेक्टर में सबसे अच्छा काम कर सकता है। आपने जो आत्मनिर्भर की बात बताई, तो आत्मनिर्भर में केमिकल और फर्टिलाइजर में बहुत सारे स्कोप है। तो आपकी मिनिस्ट्री उसको किस तरीके से लेती है और आने वाले समय में हमारा एक्सपोर्ट इसी सेक्टर में कितना बढ़ सकता है? केमिकल सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में तो अभी बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि क्रूड को इंपोर्ट करके यहाँ रिफाइन करके कई पेट्रोकेमिकल्स एक्सपोर्टर देश में और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी बनने लगी है। लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मोदी जी ने देश के लिए एनकेस किए, वो है सऊदी अरेबिया के साथ हमने एमओयू किया है और सऊदी अरेबिया को कहा है कि आप इंडिया में आइए और स्टोरेज करिए। तो कोई कंपनी को हम जब स्टोरेज की फैसिलिटी देते हैं तो यहाँ वो रिफाइन करेगी। रिफाइन करने से बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, उससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
युवाओं को, स्किल मैन पावर को, टेक्नीशियन को, इंजीनियर को, उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। एक ये सेक्टर है। और दूसरा फर्टिलाइजर सेक्टर है। फर्टिलाइजर सेक्टर में मैं आपको बताऊं कि 240 से 245 लाख मैट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, लेकिन देश का कंजप्शन है 330 से 40 लाख मैट्रिक टन। तो 17 लाख मैट्रिक टन हमें इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। तो वो भी देश में प्रोडक्शन हो उसका, उस दिशा में हमने नया प्लांट लगाना शुरू किया है। और अल्टरनेट फर्टिलाइजर पर किसान जाए, उसके लिए भी हम कई स्कीम, कई योजना लेके आने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के ये भी एक आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनेगा। I request to Dr. Mehul Shah sir to raise some questions. ओके सर, 2-3 क्वेश्चन है। हम आत्मनिर्भर गांव कैसे बना सकते हैं जिससे माइग्रेशन को हम रोक सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। हम आत्मनिर्भर गांव कैसे बना सकते हैं, माइग्रेशन को हम रोक सके? आज तक हमारा गांव आत्मनिर्भर ही था। फॉर एग्जाम्पल, आप सूरत से हैं और आपके साथ कई सूरत के और सौराष्ट्र के युवा मित्र लोग भी जुड़े होंगे। वो वहां से यहाँ आया था, सूरत आया था, लेकिन उन्होंने गांव को छोड़ा नहीं। गांव की जरूरियात को हमेशा उन्होंने किसी ने कहा कि मैं टेम्पल बनाना है तो गांव में उन्होंने टेम्पल बनाया, स्कूल के रूम बनाना है तो स्कूल के रूम के लिए अनुदान दिया, और उन्होंने गांव की जरूरियात को संभाला और गांव को हर हमें जो लोग कमाए उन्होंने मदद किया। यही गांव है जो गांव छोड़ के शहर में आ गए थे, लेकिन जब शहर में कोरोना वायरस की क्राइसिस के बाद ये लोग वतन में गए, गांव में गए, तो गांव ने उसको ऐसा नहीं कहा कि हम आपको आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा आइए। उन्होंने उसको गांव ने उसको स्वीकार किया। और गांव में उसकी लैंड है या तो जो कोई श्रमिक है तो उसको यही गांव उसको रोजगारी देगा, खेत में रोजगारी देगा, फार्म में रोजगारी देगा। यही गांव उसको, कोई फार्मर से कोई फार्मिंग करना जानता है तो उसकी लैंड वहां पड़ी है, वहां फार्मिंग कर सकेंगे, उसको वह संभालेंगे। और गांव का एक कल्चर ही ऐसा है, गांव आत्मनिर्भरता का एक बेस्ट मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा था, गांव में रहता था, तो मेरे पास, मेरे परिवार में गाय और भैंसें होती थी। तो गाय और भैंस मिल्क देती थी और बटर मिल्क, छाछ भी मेरे घर पे बनती थी। तो पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को, जिसके पास केटल नहीं है, उसको छाछ उपलब्ध कराना। पैसा नहीं होता था। आज आप पाउच लेने के लिए पैसा लेके जाते थे ना, 25 साल पहले ये नहीं था। ये आत्मनिर्भरता का उत्तम मॉडल था और आज भी है। गांव में एक किसान के घर पे काव मिल्क देती है तो छाछ बनाता है, तो पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को देते थे और देते हैं। और कोई किसान ने अपने खेत पे फ्रूट वेजिटेबल लगाया है, किसी पड़ोस में रहने वाले लोगों को मार्केट से नहीं खरीदना होता था, वो देते ही थे, देते ही है। ये गांव का मॉडल है। आत्मनिर्भर भारत में यही कल्पना है कि गांव की जरूरियात हम एक दूसरे को सहयोग करके, लाभ की भावना से नहीं, मैंने कहा ना, हम शुभ भाव, शुभ लाभ। हमारे घर के गेट पे मैंने देखा है, वो लिखते थे, आज अलग से लिखते हैं, लेकिन पहले सिंधु से लिखते थे, शुभ लाभ। वो जो आपका क्या बोलते हैं, उसको उपयोग करके शुभ लाभ सभी घर के गेट पे लिखा होता था, अभी भी लिखा होता है। यही आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें पैसा भी कमाना है, मेहनत भी करनी है, और कमाने के बाद या तो हमारे पास जो संसाधन है उसको एक दूसरे के सहयोग में भी जुटाना है, और हमें सामूहिकता से आगे बढ़ना है। भावना गांव में होती है। ये मॉडल फिर से गांव लोगों को, शहर में जो लोग आए हैं उसको एहसास हुआ कि नहीं, यही मेरा गांव है। जो गांव को छोड़ के मैं आया था, यही गांव ने मुझे ऐसे ही स्वीकारा है और मुझे सहयोग किया है। गांव में कभी कोई भूखे नहीं मरते भाई, ये गांव की फिलोसॉफी है।
कभी भूखे नहीं मरते। गांव के लोग उसको मदद कर देते हैं। ये गांव शहर में आने वाले लोगों फिर गांव में गए, उन्होंने मॉडल देखा है, मुझे अच्छा लगा, और वही आत्मनिर्भरता का मॉडल है। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आत्मनिर्भर भारत में जो आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जो सपोर्टिव सिस्टम था फाइनेंशियल, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए है या इसमें कस्टमर को भी कुछ बेनिफिट होगा सर? उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इसलिए है कि जो हम उसको नहीं देते तो अपना घाटा को फुलफिल करने के लिए वो अपने ग्राहक पर चार्ज बढ़ाता, या तो अलग से चार्ज लेता, और बिजली महंगी होती, तो इनडायरेक्टली ये ग्राहक पर ही है, और इनडायरेक्टली हमने दे रहे हैं डायरेक्ट कंपनी को, लेकिन उसका फायदा इस दृष्टि से उसके ग्राहक को ही होना है। ओके सर, लास्ट 2 क्वेश्चन। ये आत्मनिर्भर भारत जो प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना रहेगा या फिर ये करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने प्लान किया है? करंट सिचुएशंस में इसलिए किया कि इस बार हमें ऐसा एहसास हुआ और हम आत्मनिर्भरता को अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए इस समय पर लॉन्च किया। फॉर एग्जाम्पल, आत्मनिर्भरता को समझना, जैसा आपने गांव का उल्लेख किया, जरूरी है कि नहीं एक दूसरे को अपनाना, एक दूसरे को सहयोग करना। हाँ। हमें ये एहसास हुआ, दुनिया को एहसास हुआ कि चलो ऐसा एक क्रिटिकल मेडिसिन नहीं होती तो क्या होता, तो उससे हमें ये अवसर मिला है अपने आप को समझने का। और हमारा आत्मनिर्भरता का ही मॉडल था जो हमारा कल्चर के साथ जुड़ा हुआ था, उसको मोदी जी ने वर्तमान समय में एनलार्ज करके देश के सामने रखा है। और ये लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है, उसके पर आगे बढ़ के हिंदुस्तान अपना स्थान दुनिया में अच्छी तरह से और अलग तरह से बना सकता है। हर कंट्री का अपना अपना मॉडल होता है। जरूरी नहीं है कि दुनिया का जो ही मॉडल है वही श्रेष्ठ होगा, हमारा भी कई मॉडल श्रेष्ठ है। फॉर एग्जाम्पल, ये योगा का महत्व आज के दिन में हमें समझ में आया कि नहीं आया? ये कोरोना वायरस में हम 2 महीने घर पे रहे, योगा किया कि नहीं किया? हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने में, हमें बैलेंस रखने में योगा उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? ये किसका मॉडल है? इंडिया का है, वो आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। हमारा आयुर्वेद का महत्व हमें समझ में आया कि नहीं आया? आज हम उकाले पीते हैं, सारे गांव में, शहर में, सभी जगह पे लोग उकाला पीना शुरू कर दिया, उससे उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाई। और अच्छी तरह से देखो, दुनिया में जो डेथ रेट है उसके सापेक्ष में हमारा आधा से भी कम है, तो अच्छा इंडिकेशन है कि हमारे ट्रेडिशनल जो उपचार है उसके लिए कारगर हो सकता है। तो ये हमारा आत्मनिर्भरता का आधार है। उसको देखते हुए हमने ये लॉन्ग टर्म के लिए ये विजन को एनलार्ज किया है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए हमने जो पॉलिसी फॉर्म करने के लिए कहा, और लॉन्ग टर्म के लिए हम पॉलिसी फॉर्म करेंगे तो लोगों को, इंडस्ट्रीज को, कंट्रीज के ध्यान में रहेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए है, और उसको देखते हुए ये अपनी कार्य योजना बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, ये सरकार ने जो पूरी सिस्टम बनाई आत्मनिर्भर भारत, इसमें एक एजुकेटर सिस्टम और या एक प्रोफेसर या एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है इसको प्रमोट करने के लिए? बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक की भूमिका कोई भी देश में, देश का भविष्य शिक्षक के गोद में ही पलता है, और देश का प्रलय भी शिक्षक के गोद में ही निर्माण होता है। देश को कहाँ ले जाना है, एक बार देश के टीचर्स, देश के शिक्षक तय कर ले, इस दिशा में देश आगे बढ़ जाता है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार मेरी बेटी स्कूल में पढ़ के आई और रात को मुझे पूछ रही थी कि पापा ये है, तो मैंने उसका एक क्वेश्चंस को करेक्ट किया कि ऐसा नहीं बेटा, उसका जवाब ए है। तो ये बेटी ने बोला कि पापा ऐसा नहीं, मेरा टीचर ने ये कहा है। टीचर पर बच्चा, जब बच्चे होते हैं तब टीचर पर उनका इतना भरोसा होता है। एक शिक्षक पर एक विद्यार्थी का क्या भरोसा होता है, इस स्वयं मैंने एग्जांपल से आपके सामने रखा। तो इस दृष्टि से आज के टीचर्स ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के दरेक बच्चे नेशनलिस्ट बने, स्वाभिमानी बने, इनोवेटिव बने,
देश की आवश्यकताओं को आप सूची करो ना, केवल बच्चों को इतना ही सिखाओ, सुबह से शाम तक आप अपने लिए जो चीज वस्तु का उपयोग करते हैं, अपने जीवन के लिए अपने जीवन जरूरी चीज वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ये चीज वस्तु कहाँ से बनी हुई है, इंडिया में बनी हुई है कि बाहर बनी हुई है। और ये बच्चा तभी सोचेंगे कि नहीं मैं उसको इंडिया में बनाऊंगा, बाहर से आती है आज तो कल मैं आज कॉलेज में हूं, कल मैं एंटरप्रेन्योर्स बनूंगा तो मेरे देश में एक ऐसा राष्ट्रवाद जो देश को खड़ा कर सके, देश की जरूरियात देश में ही पर्याप्त हो सके, उसके लिए काम करें। इस संदेश के साथ आप बच्चे को जो संस्कारित करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे राष्ट्रवादी युवा बनेंगे, वो देश के प्रति जवाबदारी से काम करेंगे। Thank you, sir, for the. Chirag sir, mic and. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Mehul Shah, sir, to propose vote of thanks. थैंक यू सर। सर एक बात बताना चाहूंगा कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से ही हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल चावड़ा सर, ये सरकार के जो विचार है ये सामान्य जनजीवन तक लेके जाने के लिए, लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसे वेबिनार हम प्लान करते रहे हैं। और ये पार्टिसिपेंट का ही प्रेम है कि हर एक वेबिनार में मिनिमम हमारे पास 3000 के अबाउट होते हैं रजिस्ट्रेशन, आज तो 3500 हो गए हैं। और लाइव और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो on behalf of Jeevan Jyot Trust, JZ Shah Arts and HP Desai Commerce College, and especially on behalf of our principal sir, it's our pleasure to have such an eminent personality with us, respected and honorable Sri Mansukh Mandavia sir, Union Minister of State for Shipping, Independent Charge, Union Minister of State for Chemical and Fertilizers, India, and member of Rajya Sabha. Sir, we heartily and warmly thank you on behalf of our trust. Again, thank to the all team members, respected Anil Radadia sir, Sri Nishit Bhai Patel sir, Senate member of VNSU, technical team of your side, Office of Ministry of Shipping and Chemical and Fertilizer team, and Karyakarta of Bharatiya Janata Party. We heartily thank you for sharing a spacious time. सर आप पूरे शेड्यूल में बहुत बिजी होंगे, बट फिर भी आपने ये सेशन के लिए हमारी जो दरखास्त है उसको स्वीकार करके हमारे लिए जो भी टाइम निकाला है उसके तहे दिल से प्रिंसिपल सर और पूरी कॉलेज की टीम से हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल साहब का थैंक यू। सभी लोगों ने वहां से ऑर्गेनाइज करके मुझे 3500 लोगों से मिलने का अवसर दिया, आप सबके लिए भी थैंक यू। और भविष्य में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। और आप सबको ऑनर सर। हाँ, आप सबको मिलकर मुझे खुशी हुई। धन्यवाद सर। आप इससे भी फिर आप सभी को भी आप हमें ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि और लोगों को भी आप बताएंगे कि ऐसा हम सेमिनार करने चाहते हैं, आप हमारे लिए रेफरेंस करेंगे कि भाई इन लोगों का रिक्वेस्ट आए तो आप एक्सेप्ट करें और हमारे साथ वेबिनार में जुड़े। मैं किशोर सिंह चावड़ा की ओर से सबको प्रणाम भी करता हूँ और आपको भी थैंक्स भी कहते हैं और आगे के लिए भी आपको रेफरेंस के लिए भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।